Hello students, this is our second lecture of class BSc Maths second year, second paper differential equation. Today we are going to study the solutions of differential equation of first order and first degree. First order and first degree means there are only derivatives dy by dx and no power of this derivative. After seeing the equation, we will follow the following steps because there are so many methods to solve the differential equation of the first order and first degree, and we will proceed one by one. First, we will observe that whether it is possible to separate the variables x and y or not. If it is possible, means in the equation whether the variables are separable. If we can separate the variable, we will write x terms with dx and terms containing y with dy. Then such types of equations are called variable separable. Means these types of equation can be written in the form some function of x dx plus some function of y dy is equal to 0. Before it, I would like to tell you in general what type of look the equation of first order and first degree give. Means any equation of the type m plus n dy by dx is equal to 0 or m dx plus n dy is equal to 0, where m and n are functions of x and y. This is called differential equation of the first order and first degree. In this first type of equation, in which we are saying that variables are separable, means we can write equation in the form fx dx plus phi y dy is equal to 0. Means we can separate the variables. If we can separate the variables, we can easily solve the equation, and such type of equations are called the equation in which variables can be separated. Let us take an example. See, there is an equation dy by dx is equal to e की power x minus y plus x square e raised power minus y. We will try that whether variables can be separated. In this equation, see, on the right hand side, e raised power minus y factor is common and it can be written e raised power minus y within bracket e की power x plus x square. Now we will take terms of y on one side and terms of x on another side, so that equation can be written as e की power dy is equal to e की power x plus x square dx. Now we integrate the equation. Solution will be integration of e की power y is e की power y. We are integrating these equations, so it will be e की power y is equal to e की power x. Integration of x square is x cube by 3 plus some constant. So this is the solution of the equation. These is equations in which variables can be separated. So in this way we can very simply, by simple integration, because we know the formulas of integration, by simple integration we can solve the differential equation. Second method is homogeneous equation. Let us take one more example of equations in which variables are separable. Let us take another example. Say the equation is sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy is equal to 0. Right? Here again we will try to separate the variables. See here, it can be written as sec square x upon tan x dx plus sec square y upon tan y dy is equal to 0. Clear? Now we will integrate. Variables are separated. x के साथ x के वेरिएबल, y के साथ y के वेरिएबल. इसको इंटीग्रेट करें. sec स्क्वायर x dx
सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x dx प्लस सेक स्क्वायर वाई बाई 10y dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करें, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में किस तरह के टर्म्स आ रहे हैं। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10x, दैट इज लॉग ऑफ 10x प्लस लॉग ऑफ 10y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लॉग ऑफ c के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि पूरा इक्वेशन में हमारे लॉग के रूप में इंटीग्रेशंस आ रहे हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल्स बताए कि किस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स सेपरेबल है। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपकी बुक में बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन डिस्कस मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था, फर्स्ट है हमारा वेरिएबल सेपरेबल। अगर हमारा इक्वेशन में वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो सकते हैं तो हम सेकंड मेथड में आएंगे। सेकंड मेथड है हमारा कि हम देखेंगे कि क्या वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इस तरह के अवकल समीकरण, dy by dx is function of x y of सेम पावर्स, जहाँ f1xy और f2xy दोनों के दोनों एक ही घात के समीकरण हैं। और इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसको x के टर्म में एक नया वेरिएबल v इंट्रोड्यूस करते हैं और हम लिखते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। जब y इज इक्वल टू वी एक्स हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम लें dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब क्योंकि ये इसमें x और y में जो समीकरण है वो उसमें सब एक ही घात के पद हैं, अर्थात हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मान लीजिए n घात के पद हैं, तो एक्स एन हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n सम अनदर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। इसी तरह से नीचे वाला टर्म भी हो जाएगा x की पावर n सम अनदर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमारा अब इससे कन्वर्ट हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स अपॉन सम अनदर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। क्लियर। अब जब हमने y बाई एक्स को v सब्सटीट्यूट कर दिया है तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ v अपॉन सम अनदर फंक्शन ऑफ v। यहाँ पर आप देखिए फिर से हमारी इक्वेशन आ गई x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ v अपॉन सम अनदर फंक्शन ऑफ v माइनस v। हम इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे फर्स्ट मेथड पे हम जाएंगे, अगेन वेरिएबल्स हमारे सेपरेबल हैं, वेरिएबल सेपरेट होकर किस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ टू वी डी वी अपॉन एफ वन वी माइनस वी एफ टू वी। क्लियर। अब देखिए यहाँ फिर से वेरिएबल सेपरेट हो गए और हम इसको अपने जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था उसी मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पुनः एक एग्जाम्पल दे करके बताऊंगी कि इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की सहायता से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये इक्वेशंस हमारी किस तरह से सॉल्व की जा सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई
प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। हम इसमें इक्वेशन को पहले देखेंगे कि क्या हम इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो हम उसको फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इस वाले टर्म में एक्स और वाई एक साथ इस तरह से आ रहे हैं कि हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड मेथड के लिए हमें देखना है कि क्या ये होमोजीनियस है, समघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर y की घात कितनी है 2, यहाँ पर x और y की घात मिला के 2, यहाँ पर भी 2, तो ये हमारा समघात अवकल समीकरण है। तो इसको हम, और समघात कितनी है द्वितीय घात का, हम इस समीकरण को आसानी से अपने सेकंड मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। क्या है सेकंड मेथड, हम रखेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, हम सब्सटीट्यूट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा हमको, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और देखिए हमारी उसमें इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, वाई स्क्वायर की जगह आप रखिए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई को भी हमें कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम कन्वर्ट करेंगे इसमें। देखिए ये इक्वेशन होगी वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज़ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स को रख दीजिए वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको हम अब सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास वेरिएबल सेपरेट करने वाली स्थिति आ चुकी है। इसके लिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, v प्लस 1 एलसीएम में आ गया, वी स्क्वायर माइनस वी, दैट इज़ माइनस वी अपॉन वी प्लस 1। अगर हम वेरिएबल्स को अब इसमें सेपरेट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म की आ जाएगी, देखिए एक सेकंड, यहाँ पर हमारा ये माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वी आएगा, माइनस वी दैट इज़ माइनस वी स्क्वायर माइनस वी दैट इज़ माइनस, साइन कॉमन आ गया हमारे पास, v टाइम्स 2v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट होंगे तो dx अपॉन x इज़ इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन v 2v प्लस 1 dv, माइनस साइन रहेगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस dx अपॉन x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में हम पार्शियल फ्रैक्शन से इनको अलग करेंगे। दो गुणनखंड हैं, एक v और दूसरा 2v प्लस 1, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से इनको अलग अलग करेंगे। ये हमारे पास टर्म हो जाएंगे जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो दिस इज़ 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 dv। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो माइनस dx अपॉन x इज इक्वल टू dv अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 dv। इंटीग्रेशन देखिए क्या आया, माइनस ऑफ लॉग x इज इक्वल टू लॉग v। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2v प्लस 1 प्लस लॉग c। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि लॉग के टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये हमारा हो जाएगा, लॉग को हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन, एलसीएम में ले लें 2 को तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 लॉग v माइनस लॉग 2v प्लस 1 प्लस 2 लॉग c एंड इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग x, राइट। तो ये हो गया हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे v स्क्वायर अपॉन
2v plus 1 into c square is equal. Solving this equation, we will get 1 upon x square is equal to v square upon 2v plus 1 into c square. Now substituting v is equal to y upon x. So 1 upon x square is equal to v square upon x square upon 2v by x plus 1 into c square. We simplify it, we will get the result x y square c square upon 2y plus x is equal to plus 1. So this is the solution.